There can be physical quantities which do have sense of direction, but still cannot be classified as vector because they do not follow the triangle law of vector addition. So in our today's class, we are going to discuss about triangle law of vector addition, the law which makes a physical quantity having the sense of direction to be classified as vectors. We all, in our introduction to vector class, we all studied that current, though has a proper sense of direction. You all do remember that current always flows from higher potential to a region of lower potential. So the moment I say the current is flowing from a region of higher potential to a region of lower potential, indicates that the current do have a proper sense of direction. But why current cannot be classified as vector is because of the fact that it does not follow this particular law, which is called as triangle law of vector addition. Similarly, time also follow a sense of direction. In fact, in your higher physics, you will learn that time has got a proper sense of direction, which is defined by the law of entropy. Time always increases in the direction of increasing entropy. Entropy means disorder. So time always increases in the direction in which the disorder is increasing. But can time also be classified as a vector, though it has got a proper sense of direction? The answer is no. Why? Because time do not follow this particular law which is you are about to learn, called as triangle law of vector addition. So बच्चों, ये particular law है जो कि define करेगा कोई भी given physical quantity कब vector है और कब vector नहीं है. तो ये जो लॉ है, इसके दो बेसिक पार्ट है. मैं आज ग्राफिकल अप्रोच से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये लॉ कहता क्या है. और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वी हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स, वन इज कॉल्ड एज ए वेक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड एज बी वेक्टर. मैंने इस लॉ को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ सेज हेड टू टेल मेथड एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ इज stating tail to tip method. अगर आप ये दो बातों को ध्यान में रखेंगे तो you would be able to understand what exactly this law is all about. And here I would like to classify that vector addition is not simply the sum of two magnitudes. Algebra में हम दो magnitudes को उठा के जोड़ देते थे और कह देते थे ये addition हो गया. Vector addition इसके बियॉन्ड है. वेक्टर एडिशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दो हिस्से हैं. सबसे पहला हिस्सा क्या कहता है? Head to tail. That means on the head of the first vector, you need to place the tail of the second vector. अगर मुझे a प्लस b का ऑपरेशन करना है, यानी a वेक्टर को b वेक्टर के साथ ऐड करना है, तो a वेक्टर मेरा फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा बच्चों, और b वेक्टर मेरा सेकेंड वेक्टर बन जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लॉ विच यू आर अबाउट टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ, ये कह रहा है कि ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दैट हैपेंस टू बी द वेक्टर ए, you need to place the tail of the vector b that happens to be the second vector. इसलिए देखो मैंने यहाँ पे पहले पार्ट में लिखा head to tail. आपको याद बनाए रखने के लिए, याददाश्त में बने रहने के लिए, हेड टू टेल, यानी हेड किसके हेड पे? पहले वेक्टर के हेड पे किसका टेल? दूसरे वेक्टर का टेल को रखना. ये प्रोसेस का, वेक्टर एडिशन के प्रोसेस का पहला पार्ट है. तो आप यहां पे देख रहे हो ये वेक्टर बी है. मैं करने क्या जा रहा हूं? इस वेक्टर बी को स्लाइड करता हूं. स्लाइड करने से वेक्टर कभी भी बदलते नहीं है. तो मैं इस वेक्टर बी को स्लाइड करता हूं. कैसे स्लाइड करके लाता हूं? मैं इसको प्लेस करता हूं वेक्टर ए के हेड पे. तो आप देख सकते हैं मैंने इसको स्लाइड किया और वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे प्लेस कर दिया. यानी मैंने पहले प्रोसेस का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया. दिस इज द प्रोसेस वन. अब आगे का प्रोसेस क्या बताता है? कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, या सम वेक्टर जो है, इसे कई बार सम भी कहेंगे, या नेट जो नेट वेक्टर है,
जो रिजल्टेंट वेक्टर है या सम वेक्टर है या जो नेट वेक्टर है वो कैसे ऑब्टेन होता है, ये प्रोसेस 2 डिफाइन कर रहा है। क्या कह रहा है प्रोसेस 2? वो बता रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है या सम वेक्टर है उसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अब फिर से समझिएगा, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर के लिए लिख रहा हूं, तो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू ज्वाइन द टिप ऑफ द सेकेंड वेक्टर। टिप किसका? सेकेंड वेक्टर का। तो प्रोसेस 2 बता रहा है कि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ऑब्टेन होने वाला है। रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों ऑब्टेन होने वाला बाय ज्वाइनिंग। मैं जैसे ही ज्वाइन करता हूं किसके? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को किससे? टिप ऑफ द सेकेंड वेक्टर से, कुछ इस तरह से। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन एन एरो लेंथ joining the tail of the first vector. You can see here lies the tail of the first vector and here lies the tip of the second vector. So by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector, I will get the resultant, the sum of vector A and B. So you can easily see that vector addition is not simply the sum of two magnitudes. वेक्टर एडिशन एक सिंपल मैग्नीट्यूड का जोड़ नहीं है, दो मैग्नीट्यूड को आपस में जोड़ने लायक नहीं, इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। उस प्रोसेस के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा कहता था you need to place the tail of the second vector on the head of the first vector. That was this process, tail, head to tail. And then the resultant vector will be obtained by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector. ये प्रोसेस, ग्राफिकल अप्रोच, ये कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है in this particular form कि if sides of any triangle represents any two vectors. So now if you look over this diagram and you will find that this diagram is representing a triangle, एक triangle को represent कर रहा है और इसके sides किन्हीं दो वेक्टर को represent कर रहा है। देखो इनके दो sides मैंने ले लिए A और B. So if two sides of a triangle taken in a particular order, कौन से order में मैं चल रहा हूं? A से B में जा रहा हूं। देखो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहा हूं। If two sides of a triangle represents two vectors, then the third side of the triangle, this becomes my third side. But when I take it in the opposite order, अब मैं देखो यहाँ पे head, यहाँ पर tail से head था, फिर tail से head था, तो ऑर्डर क्या था? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। लेकिन जब मैं थर्ड साइड को ले रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में टेल और उसका हेड लाई कर रहा है, तो इसलिए मैंने कहा देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये ट्रायंगल लॉ को स्टेट करने का एक तरीका है। इसी तरीके से इसका नाम पड़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेक्टर एडिशन इज अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस दो पार्ट को मिला के बना था बच्चों, हेड टू टेल एंड देयर आफ्टर टेल टू टिप। आई होप ये स्टेटमेंट आपके समझ में आ गया होगा। तो जब कभी कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यू नीड टू स्टेट दिस स्टेटमेंट। जो प्रोसेस है अगर वो पूछे कि हाउ डू यू ऐड टू वेक्टर्स ग्राफिकली, देन आपको वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो ट्रायंगल लॉ इज स्टेटेड इन दिस फॉर्म कि if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in one specific order, then the resultant of those two vectors will be represented by the third side of the triangle taken in opposite order, and that's how you state the triangle law of vector addition. Now there's another way of stating the same thing. अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने स्टेट किया, इसलिए अलग अलग नाम पढ़ते चले गए। पहले एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को स्टेट किया गया, फिर उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाला, फिर उस प्रोसेस किसी और ने, किसी तीसरे पर्सन ने और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और उसने क्या लॉ निकाल दिया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू कैन सी दिस इज सम पॉइंट P and this point P is acted upon by two vectors, one is vector A and vector B.
और ये ए और बी किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं, ड्रैगिंग वेक्टर बी and dragging vector A. तो you can see I have completed a parallelogram. और अभी तुमने प्रोसेस समझा था, ग्राफिकल अप्रोच समझी थी वेक्टर के एडिशन की। क्या थी ग्राफिकल अप्रोच? क्या सिखाती थी कि भाई अगर मैं वेक्टर, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दूं, तो टेल से, जब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टिप को ज्वाइन कर दूं, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता। तो तुम बड़ी इजीली देख सकते हो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और अगर मैं a प्लस बी करना चाहता हूं तो वेक्टर a के हेड पे, जो कि यहां है, अगर मैं b वेक्टर के टेल को रख दूं, जो कि ये रख दिया गया है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है c वेक्टर, यानी सम ऑफ द वेक्टर a प्लस बी वेक्टर, वो टेल ऑफ द वेक्टर a से, जो कि कहीं यहां पर था, मिलेगा बाय ज्वाइनिंग द टिप ऑफ द सेकेंड वेक्टर, जो कि वेक्टर b है। अब अगर मैं इसको फिगर को देखूं, तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम की बन के आ गई। वेक्टर ए और बी दो साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, और सी जो है उस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, जो ए और बी जहां से पास कर रहा है उसी पॉइंट से पास कर रहा है वो डायगोनल। बिकॉज वेक्टर के दो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हो सकते हैं, तो एक ये वाले डायगोनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस डायगोनल की बात कर रहा हूं जो उसी पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है जहां पर दोनों वेक्टर एक दूसरे को मीट कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को एक और तरीके से स्टेट किया गया, जिसको मैं कहता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वो क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर can be represented, if two vectors can be represented in magnitude and directions by two adjacent sides of a parallelogram drawn from any single point, then the resultant vector will also be represented by magnitude and direction by the diagonal that happens to pass through the same point. तो बच्चों, जो तुम्हारा समेशन वेक्टर है, या जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या जो नेट रिजल्टेंट है, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो उसी पॉइंट से पास कर रहा है जहां पर ए और बी वेक्टर मीट करते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन को स्टेट करने का एक और अप्रोच था, एक और तरीका था, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होप you can understand both the laws and the process. Process was, on the head of the first vector, you used to place the tail of the second vector. Then by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector, you used to get the resultant vector. और इस प्रोसेस को स्टेट करने के दो अलग अलग अप्रोच थे। एक का अप्रोच था ट्रायंगल लॉ और दूसरे का अप्रोच था पैरेललोग्राम लॉ। I expect that you have understood both the laws. Let's move on to another aspect of vector addition, that vector additions are commutative. Certain operations are commutative and certain are not. So let's try to understand what is a commutative law. Commutative law says that if I operate A plus B and I get some result, then if I operate B plus A, will I get the same result or not? For example, अगर मैं 1 plus 2 कर रहा हूं, तो क्या मुझे 2 plus 1 मिलेगा? और क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे? अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होते हैं, यानी 1 plus 2 जब ऑपरेशन करता हूं और जब मैं 2 plus 1 ऑपरेशन करता हूं, जो दोनों का रिजल्ट मिलता है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है, तो ऐसे प्रोसेस को मैं कहता हूं कि ये आपस में कम्यूटेटिव प्रोसेस है। And you know 1 plus 2 is 3 and 2 plus 1 is also 3. So we say algebraic additions are commutative in nature. लेकिन वहीं पर अगर मैं 1 minus 2 करता हूं एंड 2 minus 1 करता हूं, तो 1 minus 2 से मुझे क्या मिलेगा? -1, और 2 minus 1 से क्या मिलेगा? 1। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो आंसर मिलता है नो। तो तुम कहते हो algebraic subtractions are non-commutative। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर, वो है कि क्या वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है? यानी जब मैं a प्लस बी करूंगा और जब मैं b प्लस ए करूंगा, क्या दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, सिमिलर आएंगे? क्या दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे? अब जब मैं a प्लस बी की बात कर रहा हूं बच्चों, तो तुम्हें समझना इस प्रोसेस का सबसे पहला हिस्सा क्या है। On the head of vector A, I need to place the tail of the vector B.
तो मैं वेक्टर ए को खींच के लाता हूं, स्लाइडिंग द वेक्टर डज नॉट चेंज द वेक्टर, और इसके हेड पे बी का वेक्टर का टेल ला के रखता हूं, तो मुझे एडिशन ऑफ द टू वेक्टर ऑब्टेन होता है बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द टिप ऑफ द सेकेंड। और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस के लिए C1 से कॉल कर लेता हूं। तो ये ऑरेंज एरो जो है ये C1 यानी a प्लस बी के जोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं b प्लस ए करना चाहता हूं, यानी अब बच्चों मैं b के हेड पे a का टेल लाना चाहता हूं, तो मैं स्लाइड करता हूं b, और अब मैं प्रोसेस में देखो, पहले वाले प्रोसेस में a के हेड पे b का टेल रखा गया था, इस प्रोसेस में b के हेड पे a का टेल रखा गया, प्रोसेस बदल गया है। अब दोनों प्रोसेस सेम नहीं है, ए के हेड पे आपने बी का टेल रख दिया है। तो जब मैंने बी के हेड पे ए का टेल रखा, तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द सेकेंड वेक्टर। तो मैंने टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जो कि बी है इस केस में, उससे टिप ऑफ द सेकेंड वेक्टर जो कि ए है उसको आपस में जोड़ दिया, और जब मैंने वो जोड़ा है तो मुझे एक रिजल्टेंट मिल रहा है C2, और इस C2 की वैल्यू क्या है बच्चों, B प्लस ए। अब चेक ये करना है कि क्या C1 और क्या C2 दोनों आपस में इक्वल है। मैं दोनों को स्लाइड करके लाता हूं, तुम देखोगे कि दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दोनों सेम डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो इससे मुझे कंक्लूजन मिल जाता है C1 मस्ट बी इक्वल्स टू C2, और चूंकि C1 मस्ट बी इक्वल्स टू C2, और उससे मुझे पता चल जाता है A वेक्टर A प्लस B वेक्टर मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू B प्लस A। So that is how we go for addition of two vectors, and we found that addition of two vectors are going to be commutative. No matter whether I add A plus B or I add B plus A, the resultant vector will always be the same. I hope you could have followed what vector addition is all about. So if you all can so in the next part of this discussion, we will be understanding how vectors can be added if they are represented in component forms. Now, bachcho, you know that vectors can be broken into their components, और x, y और z तीन तरह के components निकल के आते थे। हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड है, वेक्टर a a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप से रिप्रेजेंटेड है, दूसरा वेक्टर b उसको रिप्रेजेंट किया गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप से। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं तो हाउ वन शुड प्रोसीड, हमें कैसे आगे बढ़ना है ताकि हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लें, दोनों का सम फाइंड कर लें। कंपोनेंट फॉर्म्स में वेक्टर एडिशन बड़ा आसानी से लिखा जाता है। कैसे लिखा जा सकता है? सिंपली उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, x का रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को उठा के जोड़ दो अलजेब्राइकली, y कंपोनेंट को अलजेब्रिकली ऐड कर दो और z कंपोनेंट को अलजेब्रिकली ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट उनका एडिशन का होगा। यानी a प्लस बी वेक्टर विल सिंपली बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग और बाय एडिंग देयर रिस्पेक्टिव x कंपोनेंट, देयर रिस्पेक्टिव y कंपोनेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव z कंपोनेंट। तो मैं कर क्या रहा हूं, a1 b1 इनके रिस्पेक्टिव x कंपोनेंट्स हैं, तो उन x कंपोनेंट्स को मैं उठाकर ऐड करता हूं। a2 b2 इनके रिस्पेक्टिव y कंपोनेंट्स हैं बच्चों, उनको उठा के मैं ऐड कर देता हूं, और a3 b3 दोनों के z कंपोनेंट्स उनको उठाता हूं, उनको ऐड कर देता हूं अलजेब्रिकली, और जो रिजल्टेंट मिला ये रिजल्टेंट ही, ये जो ऑब्टेन किया मैंने रिजल्ट, ये रिजल्ट ही दोनों वेक्टर्स का सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों वेक्टर का सम जो है वो ऑब्टेन हो गया बाय जॉइनिंग, बाय एडिंग their x component, y component and z components together. That was pretty simple, I believe that. Next part जो है वो मैथमेटिकल अप्रोच सिखा रहा है कि कैसे मैं दो वेक्टर्स को आपस में मैथमेटिकली या एनालिटिकली जोड़ूंगा। तो मैथमेटिकली मैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करता हूं,
ये समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही इस पार्ट की रिक्वायरमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. हमारे पास वंस अगेन दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी. तुम्हें प्रोसेस मालूम है, मैं तुम्हारे समझ के लिए फिर से एक बार उस प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं. और वो प्रोसेस क्या कहता है कि ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए आई नीड टू प्लेस द टेल ऑफ द वेक्टर बी. I need to place the tail of the vector b. Then by connecting or then by joining the tail of the first vector to the head of the second vector, I will get the resultant of the b vector. ये एक प्रोसेस था जो हम लोग पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं. तो आज हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और फिर मैं मैथमेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा, एक एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा उस प्रोसेस के ऊपर बेस, जिसकी मदद से मैं फ्यूचर में जाकर दो वेक्टर्स को आपस में उसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से जोड़ूंगा. तो तुम देख सकते हो यहां पर वेक्टर ए जो है वो पर्पसली मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइन कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अलाइन कर दिया, यानी स्लीपिंग लाइन के अलोंग अलाइन कर दिया. और वेक्टर बी कुछ एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से रखा हुआ है. प्रोसेस कहता है कि अगर मुझे a प्लस बी करना है तो a के हेड पे b का टेल लाके लगा देना चाहिए. तो मैं करता क्या हूं, मैं a के हेड पे बच्चों b का टेल ले जाके प्लेस कर देता हूं. तो मैंने स्लाइड किया वेक्टर b को और वेक्टर b को स्लाइड करने के बाद ऐसे अरेंज किया ताकि उसका टेल हेड ऑफ द a पे लाई कर रहा, जैसा कि तुम यहां पर देख सकते हो. अब तुम सबको मालूम है कि रिजल्टेंट वेक्टर कहां से मिलेगा. रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जब मैं टेल ऑफ द वेक्टर ए से टिप ऑफ द वेक्टर बी को जोड़ दूं तो डेफिनेटली ये जो एरो है वो रिजल्टेंट को बताएगा. सो दिस एरो इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी. यही तो प्रोसेस था. अब मैथमेटिकली इस प्रोसेस को डिराइव करने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि बेटा जरा रिकॉल करो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते थे. और जब तुम उसको रिकॉल करोगे तो तुम्हें याद आएगा कि जब हम दोनों वेक्टर्स के टेल को आपस में जोड़ देते थे तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट एंगल होता था या जो स्मॉलेस्ट एंगल होता था, वो स्मॉलेस्ट एंगल दोनों वेक्टर्स के टेल्स को रिप्रेजेंट करता था. यानी मैं ए के हेड से ए के टेल पे बी का टेल जोड़ दूं या ए के हेड पे बी का हेड जोड़ दूं. मैंने फिलहाल यहां पर ए के टेल पे बी के टेल को जोड़ा और जैसे ही तुम देखोगे कि मैंने ए के टेल पे बी के टेल को जोड़ दिया है, you will find an angle being formed. So this is nothing but vector b. तो ये जो एंगल बना है इसको एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है फॉर द सिंप्लिसिटी. और this blue color arrows are parallel to each other. If this angle happens to be theta, then eventually this angle will be also theta because they are parallel lines. कौन सी parallel lines है? ये लाइन एंड ये लाइन आपस में पैरेलल लाइंस है. ये डॉटेड ब्लैक कलर लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये थीटा तो ये थीटा ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए मेरे लिए. इसलिए दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए. मैंने किया क्या, वेक्टर बी का और वेक्टर ए के बीच का एंगल फाइंड कर लिया. और देखो वेक्टर बी, चूंकि वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल के अलोंग लाई कर रहा था, इसलिए वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो ए से जो एंगल निकला है वो हॉरिजॉन्टल से भी एंगल निकल के आ रहा है, तो वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा डिग्री का है. और अब मैं वेक्टर बी को रिजॉल्व कर सकता हूं उसके दो कंपोनेंट्स में. तुमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पिछले टर्न पे पढ़ा था.
तो जिससे एंगल बनता था उसके अलोंग हमेशा कॉस कंपोनेंट जाता, तो बी को मैंने ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट में, तो जिससे एंगल बना, किससे एंगल बन रहा था थीटा का, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इतना जो कंपोनेंट निकल के आ रहा है बी का वो हो गया है बी कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, वो हो गया है बी साइन थीटा। तो मैंने बी को तोड़ दिया उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में, एक निकल के आया बी कॉस थीटा, दूसरा निकल के आया बी साइन थीटा, पर्पल कलर से दोनों कंपोनेंट्स को शो किया था। अब अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये जो मैंने शेड किया है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इतनी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, यानी सिंपल ए, और ये जो लेंथ आ रही है ये आ रही है बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि बी कॉस थीटा है। तो ये पूरी इंटायर लेंथ है बच्चों, ये आ गई है आपके पास a प्लस बी कॉस थीटा, और ये जो लेंथ आई है ये लेंथ आ रही है आपकी बी साइन थीटा। अगर आप देखिए तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी वेक्टर था क्या, सी वेक्टर था सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जैसे ही मैं इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लूंगा बच्चों, वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ वेक्टर सी यानी सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगी। तो जरा सा ये मैथमेटिक्स कर लेते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। And what does the magnitude of vector c is? What is vector c is? Vector c is nothing but the sum of vector a and b together. So in order to get the magnitude of vector c, I need to find out the length of the hypotenuse, which is nothing but under the root of a plus b cos theta ka whole square plus b sin theta ka whole square. If I solve this, if I open this bracket, I will get a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta. And then I can also square the b sin theta part. So this becomes b square sin square theta. Now if you can see together, I can group these b square cos square theta and b square sin square theta term together. So I will get magnitude of c vector, which eventually will be under the root of a square plus b square cos square theta plus sin square theta will come in common, plus 2ab cos theta. And if you see, you might have studied that cos square theta sin square theta is 1. So this is eventually 1. So I can very easily write down the magnitude of c as under the root of a square plus b square plus 2ab cos theta. And what does the magnitude of c represents? That represents the magnitude of the resultant of a and b. So using this technique, I can define the resultant of vector c, or the magnitude of sum of vector a and b, which eventually is written over there. C is equals to under the root of a square plus b square plus 2ab cos theta. अब जरा सा तुम अगर पीछे की क्लास को, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर की क्लास को रिकलेक्ट करो, तो और देर तुम्हें याद आएगा मैंने किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन सेंस को डिफाइन करने का तरीका भी सिखाया था आपको, और मैंने उस समय बोला था, उस समय बताया था आपको कि कोई भी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, कोई भी वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन से या एक्स एक्सिस से या स्लीपिंग लाइन से
जो भी एंगल बनाता है बच्चों, वो एंगल डिफाइन करता है उस वेक्टर का डायरेक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल मैंने फाई का बताया है, फाई बना रहा है, दिख रहा है ये फाई। तो अगर मुझे इसका एंगल यानी कि डायरेक्शन चाहिए तो मैं फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बढ़ता हूं। और तुम्हें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज कर सकता हूं, टी रेशियोज का यूज कर सकता हूं। और टी रेशियोज में tan phi will give me the angle between या एंगल फॉर वेक्टर C with the horizontal या विद द वेक्टर A, और tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, अगर तुम वो देखोगे तो b sin थीटा, वो ये रही परपेंडिकुलर। और बेस कितना बड़ा है, बेस ये रहा a प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास tan phi की वैल्यू आ गई। और ये tan phi क्या डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a। तो इस तरह से हम लोगों ने एक मैथमेटिकल अप्रोच को डेवलप कर दिया वेक्टर एडिशन के लिए। और वेक्टर एडिशन एक प्रोसेस था जिसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व थे, हेड टू टेल एंड टेल टू टेल। आगे जाके हम इस प्रोसेस को कई जगहों पर यूज करेंगे। हर जब भी हमारे पास एक से ज्यादा या दो वेक्टर्स अवेलेबल होंगे तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पार्टिकल के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है या कोई एक पार्टिकल है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कोई पार्टिकल P है और इस पार्टिकल P के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2, और दोनों फोर्सेस कुछ एंगल थीटा डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो उस पार्टिकल के ऊपर नेट कितना फोर्स लगेगा उसका मैं अगर एक्सप्रेशन जानना चाहता हूं या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहता हूं बच्चों, तो वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाता है अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F कोसाइन थीटा। और वो रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है वो कितने एंगल पे लाइन कर रहा है, उसका रिजल्टेंट या नेट, तो वो कितना एंगल बनाता है पहले वेक्टर F1 से, तो उस F1 का जो एंगल बन रहा है, सॉरी रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है F1 से, उसका एक्सप्रेशन है tan phi is equals to F2 sin थीटा अपॉन F1 plus F2 cos थीटा। और ये चूंकि हमारा ये एंगल हमेशा पहले वाले वेक्टर से डिफाइन हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रख के चलिएगा। अब अलग अलग केसेस हैं, अगर थीटा 0 होगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो F1 प्लस F2 आ जाता है। थीटा अगर 180 डिग्री है तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख दिया है। थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, थीटा 60 डिग्री है तो क्या होगा, आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन इस रिजल्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है जो मैं चाहता हूं कि मैं क्लास एंड करने से पहले आपको बता दूं, कि अगर दोनों फोर्स F1 और F2 अगर बराबर के मैग्नीट्यूड के होंगे तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट फोर्स है F नेट, ये रिजल्टेंट फोर्स R कुछ भी कह दो, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में लाई कर रही होगी, यानी फाई की वैल्यू उस सिचुएशन में थीटा बाई 2 के बराबर होगी। ये तब होगा जब दोनों फोर्सेस बराबर के मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। We will continue about this on the next turn. So I'm going to stop over